Hello friends, this is Parikshit Agrawal at Good Maths. Have you ever tried to split a bill at a restaurant when different people owed different amounts? Have two of your friends started from different points and moved towards each other, and you have wondered in how much time and how at which distance will they meet if they start with unequal speeds? The answers to these questions lie in the chapter A Pair of Linear Equations. Basically, it is solving two equations involving two variables. Let's understand the topic in more detail. When the degree of variables involved in the equation is 1, they are referred to as linear. When there are two such equations, it is called a pair of linear equations. Any linear equations, as the name suggests, will be represented on a graph by a line. And when there are two such linear equations in two different variables, let's say x and y, that system is said to be a pair of linear equations. There are three such cases. Basically, if there is a system of a pair of two linear equations, they can either be intersecting, parallel, or coinciding. Let's understand this in more detail. For example, line 1 represents the graph of an equation 1, and line 2 represents the graph of equation 2. And if they meet at some point, we can conclude that they have one point in common. There is one solution to this system of linear equations, and they are said to be intersecting in nature. Similarly, when the lines are parallel, the parallel lines have no points in common. There is no solution to the system, and they are said to be represented by a pair of parallel lines on the graph. In the third case, both the lines coincide, so they have infinitely many common points, and there are infinitely many solutions to this system of equation, and the lines are said to be coinciding. क्या ये क्लियर है तीनों केसेस? क्या ये तीनों केसेस नेचुरल लॉजिक को फॉलो करते हैं? Okay, we'll move on to the next topic. We'll move on to a sum. Write an equation of a line passing through the point representing the solution of the pair of these linear equations. How many such lines exist? चलिए देखते हैं. X plus y equals 2 and 2x minus y equals 1. ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2. अगर हम 1 प्लस 2 करें तो यहां तो बच जाएगा 3x, y और y हो जाएगा कैंसल, 2 प्लस 1 बचा 3, x इज इक्वल्स टू 1. x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में अगर हमने डाला तो 1 प्लस वाई इक्वल्स 2, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 1. x equals to 1 and y equals to 1. बेसिकली क्या मतलब हुआ कि अगर ये पॉइंट है 1,1, तो ये है इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन पॉइंट, इन इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉमन सोल्यूशन प्लॉटेड ऑन द ग्राफ. अब वो क्या बोल रहा है कि इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइंस हैं. अब किसी भी पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन रहती है? अनलिमिटेड, इनफाइनाइट. तो इसका आंसर है इनफाइनाइट और सोल्यूशन का आंसर है 1,1. हो गया क्या? समझ गया? आगे बढ़े. कंसिस्टेंसी कंडीशंस. अब कंसिस्टेंसी कंडीशंस में मतलब क्या? मैंने आपको 3 केस बताए थे. 3 केस क्या थे कि या तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, या तो पैरेलल हो सकते हैं, या तो कोइंसिडेंट हो सकती हैं लाइंस. तो उन्हीं 3 केसेस में कब कौन सा केस लगेगा, ये टॉपिक है कंसिस्टेंसी कंडीशंस. लेट्स से द लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय a1x plus b1y plus c1 and a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू जीरो. अब इस केस में जब a1 by a2 is not equals to b1 by b2, only then will the lines be intersecting. दूसरा केस क्या है कि the lines are coincident when a1 by a2
equals b1 by b2 equals c1 by c2, then the lines are supposed to be coincident. तीसरा केस क्या है, पैरेलल है, मतलब नो सोल्यूशन, तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट दे आर नॉट इक्वल टू c1 by c2. ऐसे केस में दोनों लाइंस के बीच में कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा. ये है 3 कंसिस्टेंसी कंडीशन, और हमें याद रखने की जरूरत है कि इनका कॉन्वर्स भी ट्रू है, मगर इसका मतलब अगर इंटरसेक्टिंग हुई तो ये कंडीशन ट्रू है, और ये कंडीशन ट्रू रही तो इंटरसेक्टिंग ट्रू है, एंड सो ऑन. क्या ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है आप सभी के मन में? ठीक है, we move on to the next topic. So the first case is the system and a pair of equations are consistent. In the graph of these linear equations, if they intersect at one point and they have one solution, the pair of linear equations is said to be consistent. There is an example given over here कि अगर x equal to 0 मतलब y axis and y equal to 0 मतलब x axis, ये दो लाइंस का एक कॉमन सोल्यूशन पॉइंट है क्या? क्या ये दोनों कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं? यस, क्योंकि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 मीट एट द ओरिजिन पॉइंट विच इज 0, 0. सो यस, these pair of lines are consistent and their common solution point is 0, 0. We'll move on to the next type. Dependent and consistent. In a graph of pair of linear equations of two lines, if the lines coincide, solution तो है पर infinite है, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं डिपेंडेंट बट कंसिस्टेंट. एक एग्जांपल दिया है, एक लाइन है x इज इक्वल्स टू y और दूसरी लाइन है x इक्वल्स टू 5y. अब ये 5x इक्वल टू 5y भी x इक्वल्स टू y है बेसिकली, अगर 5 दोनों से जगह से काट दो तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम नहीं हो गई क्या? अगर सेम है तो दोनों लाइंस कोइंसाइड करेंगी, और ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कहते हैं डिपेंडेंट बट कंसिस्टेंट. Inconsistent. In a graph of pair of linear equations of two lines, if the lines are parallel, मतलब क्या, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों लाइंस के बीच में, तो ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को कहते हैं इनकंसिस्टेंट. अब आप ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट है 1, यहां है 5, यहां है 5, तो a1 by a2 हो गया 1 by 5, b1 by b2 हो गया 1 by 5. अब c1 by c2 देखो क्या है, 2 by 9, तो ये 1 by 5 तो नहीं है. अगर ये 10 होता तो दोनों सिस्टम कोइंसाइड कर जाते, पर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 अनइक्वल टू c1 by c2. ये कौन सा वाला आंसर, ये कौन सी वाली कंडीशन है? जब दोनों लाइंस पैरेलल हो, तो ये लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है इनकंसिस्टेंट. अब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने के 4 मेन मेथड्स हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड. सबसे पहला मेथड हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड. यू हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन बाय एक्सपैंडिंग एनी ब्रैकेट्स इफ नीडेड. सॉल्व एनी ऑफ दीज इक्वेशंस फॉर वन ऑफ इट्स वेरिएबल्स. समझो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7. तो ये दोनों इक्वेशन में कोई भी ऐसी एक इक्वेशन पकड़ लो और उसमें x इक्वल टू दूसरे के टर्म्स में या y इक्वल टू x के टर्म्स में ये आप निकाल लो, और फिर ये जो आपने निकाला उस इक्वेशन से वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन ये आप कर दो किसी दूसरी इक्वेशन में. जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपका एक वेरिएबल का आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपकी एक सिंपल लीनियर इक्वेशन आ जाएगी और आप उसको सॉल्व करके आप दूसरा वेरिएबल निकाल सकते हैं. इसी को हम और बेटर एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. दिस इज द थियोरेटिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट. वील अंडरस्टैंड इट इन मच मोर डिटेल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल सेम है, आंसर भी सेम आना चाहिए सभी केसेस में. तो एग्जाम्पल है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब
सेकेंड इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2, अगर हम इस चीज को सब्सटीट्यूट कर दें, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 इन इक्वेशन 1, we get 2x plus 2x plus 2 minus 6 equals 0, 4x equals to 4, x equals 1. जैसे हमारा x equal 1 आया, we can substitute x equal to 1 in equation 1 and we get 2 into 1 plus y minus 6 equals to 0, y minus 6 plus 2 equals 0, y equals to 4, x equals to 1, y equals to 4. Answer is 1, 4. हो गया क्या सॉल्व? क्या किया हमने? दोनों इक्वेशंस हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी, उसके बाद हमने सेकेंड इक्वेशन चूज करी, इसमें y को एक्सप्रेस किया x के टर्म्स में, और फिर इस x के टर्म्स को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरी वाली इक्वेशन नंबर 1 में। हमारा x का आंसर आ गया, उसको हमने कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y का आंसर ला लिया। इस पूरे मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। फर्स्टली हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन में x या y कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लो जिसके कोएफिशिएंट्स इक्वल करना आसान हो। हम दोनों को, ये दोनों इक्वेशंस को एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो और जिससे उन x या y दोनों के कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाए। उसके बाद जब वो इक्वल हो गए तो उन दोनों नई इक्वेशंस को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो और आपका वन वेरिएबल निकल जाना चाहिए। उसको आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका दूसरा वेरिएबल निकल जाएगा। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको मैं नोट्स में भी अटैच कर दूंगा तो आप उससे भी देख सकते हैं। और यही एक तरीका है जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसी को हम एक एग्जाम्पल से और डिटेल में समझेंगे। 6 सेम इक्वेशन है, आंसर सेम आना चाहिए 1, 4। मेथड दूसरा है 2x plus y minus 6 equals 0 and 2x minus y plus 2 equals 0। अब y का कोएफिशिएंट नोटिस कीजिए, दोनों में वो प्लस माइनस में है। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करें, 1 प्लस 2 करें तो हमें मिल जाएगा, यहाँ तो आ गया 0, -6 प्लस 2 आ गया -4, माइनस वाई प्लस वाई आ गया 0, 2x प्लस 2x हो गया 4x, 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 1। ये हम डाल दो x इक्वल्स टू 1, सब्स्टिट्यूट x equals to 1 in equation 1, we get 2 plus y minus 6 equals 0, y minus 4 equals 0, y equals to 4, x equals to 1, y is equal to 4. The answer is 1, 4. क्या किया हमने? दोनों इक्वेशंस को लिखा। उसके बाद हमें, हमारा मोटिव क्या था? किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना। 2 के भी इक्वल थे, हम अगर x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते। हमने y चूज किया बिकॉज एडिशन सिंपल है, और हमने y को एलिमिनेट कर दिया, x का आंसर लाया, और फिर वही x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 1 में और हमने y का आंसर लाया। सिंपल है क्या एलिमिनेशन मेथड? वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर दो लीनियर इक्वेशन है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है सच दैट a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0, तो इनको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला देता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला?
x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। यही फॉर्मूले में सिर्फ x और y अननोन है, बाकी सारे तो कोएफिशिएंट हैं, इक्वेशन से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज डाल के सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हैं। इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है जो नेक्स्ट स्लाइड में दिया है। ये है तरीका कि आप x, y और 1 के नीचे ये देखिए c1 c2 ये यहाँ कॉमन है, a1 a2 ये यहाँ कॉमन है, b c a b b कैप, अगर आप इस तरीके से इसको लिख दें और डाउनवर्ड एरो को पहले मल्टीप्लाई करें और अपवर्ड एरो को उससे सब्ट्रैक्ट करें तो ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। क्या है? x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 y अपॉन c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला जो है इसका ओरिजिन है। एक सम करके देखते हैं हम, उससे हमें और समझ में आएगा। द सम इज द सेम 2x plus y minus 6 equals to 0 and 2x minus y plus 2 equals to 0. Solve the following pair of linear equations by cross multiplication method. अब देखिए इसमें पहले तो हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 लिख लेते हैं। तो a1 a2 a1 कितना है 2, b1 a2 कितना है 2, b1 b1 is 1 and b2 is minus 1, c1 c2 c1 is minus 6 and c2 is 2। तो इस फॉर्मूले में हमें लिखना है x अपॉन b1 c2 1 into 2 माइनस b2 c1 माइनस 1 इंटू माइनस 6 इज इक्वल्स टू y अपॉन a2 c1 नहीं c1 a2 c1 इज माइनस 6 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 माइनस a1 c2 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 1। बस हमने कोएफिशिएंट्स जैसे सब्स्टिट्यूट किए, अब सॉल्व होना चालू हो गया। तो x अपॉन 2 माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, फिर यहाँ माइनस, तो 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 4 y अपॉन माइनस 16 हो गया और 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4 इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 16 अपॉन माइनस 4 इक्वल्स टू 4। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4। जाना पहचाना सोल्यूशन लग रहा है क्या? एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको पहले सॉल्व किया है क्या? देखिए फॉर्मूला याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट उसके बाद का सोल्यूशन बहुत सिंपल है। फॉर्मूला आपने उस पर्टिकुलर स्लाइड की मदद से याद रखना है और जैसे ही उसको अप्लाई करोगे विद इन 2 स्टेप्स आपका आंसर आ गया, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। कैन वी मूव अहेड? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करना है? सिंपल सा खेल है, दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करो। कैसे प्लॉट करोगे? कोई भी आप x का वेरिएबल का वैल्यू लो, 0 ले लो, 1 ले लो और देखो कि इक्वेशन में फिर y का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आता है। दोनों इक्वेशंस को इस तरीके से एक्स वाई के 2-3 पॉइंट्स निकाल लो और उन दोनों इक्वेशंस को आप प्लॉट करें। जैसे ही प्लॉट करते हैं आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, ग्राफ पे जाके देखें कि वो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है। दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस और उसी को आप वेरीफाई कर सकते हैं बाद में इक्वेशन से। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, हम इसको और डिटेल में क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। आप इसका फोटोग्राफ ले सकते हैं या ये नोट्स में भी अवेलेबल है। देखिए अब पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 और दूसरी इक्वेशन है
2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। अब अगर यहाँ एक्स वाई का हमने प्लॉटिंग करी x इक्वल्स टू 0 है तो 0 प्लस वाई माइनस 6, तो 0 और 6। जब y इक्वल टू 0 है तो 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 3। अब देखो 3,0 और 0,6 से पास होने वाली हो गई ब्लू लाइन। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। सिमिलरली x और y की प्लॉटिंग हमने यहां करने की कोशिश करी। जब x 0 है तो माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 2। 0,2 एक पॉइंट है, और जब y इक्वल्स टू 0 है तो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1। तो -1,0 एक पॉइंट है, तो ये ऑरेंज वाली लाइन की इक्वेशन हो गई 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं, और इस पॉइंट पे जब उनका इंटरसेक्शन होता है, आप ग्राफिकली देख लें, वो पॉइंट है 1,4। तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आंसर लाया 1,4, एलिमिनेशन में भी यही आंसर लाया, और ग्राफिकल में भी यही आंसर लाया। क्या है वो आंसर? 1,4। We'll move on to the next topic. Solve the following pair of linear equations by reducing them to a pair of linear equations. ओके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम एक assumption कर लें 1 by x minus 1 equals to a and 1 by y minus 2 equals to b, तो ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगी 5a प्लस b इक्वल्स टू 2 एंड 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1। अब हम एलिमिनेशन मेथड अगर लगाएं तो हमको फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगी 15a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो आ जाता है 21a इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स 1/3। सिमिलरली इस a को हम इस इक्वेशन में अगर डालें तो 5 इंटू 1/3 प्लस b इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5/3, 6/3 माइनस 5/3 इक्वल्स टू 1/3। तो a और b दोनों की वैल्यूज कितनी आ गई? 1/3। तो 1/x माइनस 1 हो गया 1/3, x माइनस 1 हो गया 3, तो x इज इक्वल्स टू 4 आ गया, और 1/y माइनस 2 हो गया 1/3, दैट इम्प्लाइज y माइनस 2 हो गया 3, तो दैट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 5 आ गया। x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5 इज योर फाइनल आंसर। समझा कि हमने क्या किया? हमको दिख रहा था कि इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। इस रेसिप्रोकल को आप जो है a से डिनोट कर दो या b से डिनोट कर दो y वाले को, और उससे फिर हमको ये लीनियर इक्वेशन का सेट मिल गया। उसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, और फिर जो है हमने वापस आंसर सब्स्टिट्यूट करके x और y की वैल्यूज निकाल ली। चमका क्या? आगे बढ़े हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन x एंड y। हम इसी इक्वेशन को और बेहतर तरीके से लिख लेते हैं। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ आ गया a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, व्हाट डू वी गेट? x इंटू ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस ए कट गया,
y का तो कोएफिशिएंट कट ही जाएगा, दोनों का कॉमन है, और यहाँ आ गया ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कट गया, यहाँ पे हो गया ट्वाइस बी एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। इस पूरे में से डी 2b अगर हमने हटाया तो हो गया x इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, या हम कन्वीनियंस के लिए इसको लिख देते हैं a प्लस बी। ये एक हमारा वेरिएबल आ गया x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और हमने इसको सब्सटीट्यूट किया अगर इस इक्वेशन में, इसको हमने लिखा a, इसको हमने लिखा, नहीं ये तो 1 और 2 है ना, नहीं ये a और b है, ठीक है। तो अगर हमने b में सब्सटीट्यूट किया तो आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आप एक्सपैंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस वाई इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर इससे कट गए, तो यहाँ पे बच गया वाई इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्वाइस ए बी, तो y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ट्वाइस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये हो गया y का आंसर, ये हो गया x का आंसर। क्या किया हमने इस सम में, बेसिकली दोनों इक्वेशंस को हमने एक्सपैंड किया, फिर एलिमिनेशन मेथड लगाना था, तो हमें ये रियलाइज हुआ कि y का कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में a प्लस बी आ रहा है। हमने उस कोएफिशिएंट को एलिमिनेट किया और x का आंसर निकाला। x से जो आंसर निकला हमने उसको सब्सटीट्यूट किया किसी दूसरी इक्वेशन में और y का आंसर निकाला। है सिंपल और मेथोडिकल। अगर हमारा माइंड क्लियर रहे, माइंड स्पेस क्लियर रहे, तो ये अप्रोच काफ़ी सिंपल है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। The difference of two numbers is 4 and the difference of their reciprocals is 4 by 21. So x minus y is equals to 4 and 1 by y minus 1 by x is equals to 4 by 21. इसको अगर हम थोड़ा एक्सपैंड करें तो x minus y upon x y is equals to 21, 4 upon 21. ऊपर भी 4 आ जाएगा बिकॉज x minus y की वैल्यू 4 है। 4 अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 4 अपॉन 21, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 21, ये हमने एस्टेब्लिश कर लिया। अब हमको x प्लस वाई निकालना है। x प्लस वाई इज द अंडर रूट ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 21, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 84 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 100 इक्वल्स प्लस माइनस 10। अब x प्लस वाई की दो वैल्यूज हैं और x माइनस वाई की सिंगल वैल्यू है, तो आप x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 का एक केस ले लीजिए और x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 10 का एक केस ले लीजिए। x माइनस वाई तो सेम रहेगा, क्वेश्चन में दिया है, तो हम पहले एक केस सॉल्व कर लेते हैं फिर दूसरा कर लेंगे। इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 14 होता है, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 7 होता है। इसको हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो एक आपका सोल्यूशन आ गया, x और y दो नंबर्स है 7 एंड 3, और दूसरा केस क्या आ गया, x और y को आपने ऐड किया तो सॉरी इक्वेशंस को आपने ऐड किया तो ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू माइनस 6, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 3, y इज इक्वल्स टू माइनस 7। तो एक ये पेयर ऑफ नंबर्स हो गए, एक 7 और 3 हो गए और एक माइनस 3 और माइनस 7 हो गए। बस ये आपके नंबर्स हैं, ये आपका आंसर है। क्या किया हमने सम में,
जो कंडीशंस दी गई थी उनको हमने न्यूमेरिकली इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्सप्रेस किया, हमने एक्स वाई का फिगर निकाला। एक्स वाई की जैसी वैल्यू आ गई, हमने एक्स वाई और एक्स माइनस वाई को यूज करते हुए एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगाई, जिससे हमें एक्स प्लस वाई के दो आंसर्स मिले, प्लस एंड माइनस 10। हमने इन दोनों को जो है दो अलग अलग केसेस में स्प्लिट किया और x माइनस वाई की वैल्यू दोनों में 4 इक्वल टू कॉमन थी और हमने उससे दो आंसर्स लाए। सिंपल है क्या? चमक गया? आगे बढ़े। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8/15। फाइंड द टू नंबर्स। क्या बोल रहा है ये कि x प्लस वाई इक्वल्स 8 and 1/x plus 1/y equals 8/15। अब ऐसा तो हमने सम सॉल्व किया हुआ है, तो ऊपर आ गया x प्लस वाई, नीचे आ गया एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8/15। तो x प्लस वाई ऊपर डाल दिया हमने, 8/xy इज इक्वल्स टू 8/15। That implies xy is equals to 15। अब हमें x माइनस वाई निकालना है अगर, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स वाई, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15, that is equals to 64 minus 60, that is equals to under root of 4। Therefore x minus y is either equal to plus 2 or x minus y equals to minus 2। x plus y equals to 8, x plus y equals 8। इन दोनों को हमने अगर ऐड किया तो ट्वाइस एक्स, 8 माइनस 2 6, एक्स इज इक्वल्स टू 3, वाई इज इक्वल्स टू 5। ये आपका एक सोल्यूशन आया। यहाँ करके देखते हैं, तो ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 10, एक्स इज इक्वल्स टू 5, वाई इज इक्वल्स टू 3। ये भी तो सेम ही सोल्यूशन है। तो 3 एंड 5 आर दी नंबर्स। क्या किया हमने? x प्लस वाई इक्वल टू 8 क्वेश्चन में दिया हुआ था, इनके रेसिप्रोकल्स का सम 8/15 क्वेश्चन में दिया हुआ था। इससे हमने x y की वैल्यू निकाली। हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू थी, x y की वैल्यू हमने निकाल ली। इन दोनों को यूज करके हमने x माइनस वाई के दो ऑप्शंस निकाले। जैसे ही इन दोनों ऑप्शंस में x प्लस वाई की हमने इक्वेशन और डाली, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो गया और x और y के हमको आंसर्स मिल गए, 3 और 5, 5 और 3। These are the two numbers, hence solved। We move on to the next question। A fraction becomes 1/3 if 2 is added to both the numerator and the denominator। If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 2/5। We have to find the fraction। ठीक है, fraction को assume कर लो x upon y। अब वो क्या बोल रहा है, अगर 2 एडेड है, x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2, वो क्या बन जाता है? 1/3। और दूसरा क्या है, अगर 3 एडेड है, x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 बन जाता है 2/5। ये दोनों इक्वेशंस को हम पहले इन दोनों कंडीशंस को हम सॉल्व करके इक्वेशंस निकालते हैं। 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2। तो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4। ये एक इक्वेशन हो गई। 5x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 6। 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2y। ये एक इक्वेशन हो गई। अब इसमें अगर हम ये सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 3x प्लस 4। 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 9। 6x माइनस x इधर बच गया x, 9 माइनस 8 इधर बच गया 1।
x इज इक्वल्स टू 1। अब x इज इक्वल्स टू 1 हम अगर इसमें डाल दें तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इक्वल्स y, तो y इज इक्वल्स टू 7। x इज इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 7। द आंसर इज, द फ्रैक्शन इज 1/7। क्या किया हमने इस सम में? हमें सम में दिया था कि x बाय वाई अगर हमने अज्यूम किया फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर में 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करने के बाद द फ्रैक्शन गेट्स कन्वर्टेड टू दीज वैल्यू। इन कंडीशंस को सॉल्व करके हमने 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लाया। उससे हमने x की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट किया, y की वैल्यू निकाली। एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व नहीं किया, इस बार सब्स्टिट्यूशन से किया क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वाज इजियर। सिंपल है क्या? आगे बढ़े। यस, अ मैन कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 kilometers in 2 hours. Find his speed of rowing in still water. Find the speed of current. Let speed of rowing in still water be x. Let speed of current be y. अब अपस्ट्रीम speed of boat and downstream speed of boat, अपस्ट्रीम में x माइनस वाई हो जाएगा और डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई। ये ऑब्वियस है क्या? अपस्ट्रीम जाते वक्त बोट को करंट के अगेंस्ट जाना पड़ता है, दोनों स्पीड्स के डायरेक्शन अलग है, तो x माइनस वाई हो गया। और डाउनस्ट्रीम में दोनों स्पीड्स के डायरेक्शन ऐड हो जाते हैं, तो x प्लस वाई हो गया। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। तो 20 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम है, तो x प्लस वाई इंटू 2, ये एक इक्वेशन हो गई। और डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डाउनस्ट्रीम में कितना? 4 किलोमीटर्स, x माइनस वाई इंटू 2, ये एक इक्वेशन हो गई। तो 10 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड 2 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर हम इन दो इक्वेशन को ऐड कर दें तो आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 2y और आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर्स पर आवर। सॉल्व हो गया क्या? यस, हमने क्या किया? अपस्ट्रीम की स्पीड हमको मालूम थी, नेगेटिव में जाएगी, सब्ट्रैक्ट होंगी स्पीड्स। डाउनस्ट्रीम में हमको मालूम थी कि ऐड होंगी स्पीड्स। हमने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला दोनों केसेस में अप्लाई किया, दोनों इक्वेशंस लाई, उससे x प्लस वाई का आंसर लाया। सिंपल है क्या? आगे बढ़े। A 2-digit number is such that the product of its digits is 14. If 45 is added to the number, the digits interchange their places. We have to find a number. Let the number be 10y plus x. अब वो क्या बोल रहा है? 10y plus x plus 45 is equals to 10x plus y. That implies 10x minus x is 9x, 10y minus y is 9y plus 45 is equals to 9x. अब 9 कॉमन हटा लो तो y plus 5 is equals to x. ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। इसको हमने लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 इस फॉर्म में। और दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया एक्स वाई इज इक्वल्स टू 14। अब x प्लस वाई अगर हमें निकालना है तो x प्लस वाई इज अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स वाई। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज 25 प्लस 4 इंटू 14
25 प्लस 56 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 81। डिजिट्स तो नेगेटिव रह नहीं सकते, तो दो केस नहीं, एक ही केस आएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। x प्लस वाई अगर इक्वल्स टू 9 है और x माइनस वाई अगर इक्वल्स टू 5 है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 14, x इज इक्वल्स टू 7 और 7 माइनस y इज इक्वल्स टू 5, therefore y is equals to 2. The number is 27. 10 into 2 plus x 7 is equals to 27. क्या किया इस सम में हमने? कुछ भी नहीं। हमको दिया था कि डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, 10y प्लस एक्स से 10x प्लस वाई हो जाते हैं अगर 45 ऐड किया तो। उससे हमने ये इक्वेशन डिराइव की x माइनस वाई इक्वल टू 5। एक्स वाई इक्वल टू 14 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने एक्स वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है और x माइनस वाई दिया हुआ है, तो x प्लस वाई निकाला। x प्लस वाई जैसे ही निकाला हमने और x माइनस वाई हमारा पहले से था, उससे हमारे x और y के आंसर्स आ गए। चमक गया कैसा? हम आगे बढ़े। यस, अ ज्वेलर हैज 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड। हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन अ बार ऑफ 16 कैरेट गोल्ड वेइंग 120 ग्राम। समझो 18 कैरेट अगर x ग्राम्स लिया और 12 कैरेट अगर y ग्राम्स लिया, तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 120। ये तो एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई? प्यूरिटी की 18/24 इंटू एक्स प्लस 12/24 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 16/24 इंटू 120। अब ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/2, ये हो गया 2/3 और ये 3 इससे कट के हो गया 40। तो यहाँ बचा 80 y/2 और 3x/4। अब इस पूरे को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 320। एक ये इक्वेशन हो गई और एक ये इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 240 और हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो x इक्वल्स टू 80 आ गया और y इज इक्वल्स टू 40 आ गया। ये है हमारा आंसर। क्या किया सर इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। हमको मालूम है कि दोनों का मास मिला के 120 ग्राम का वो बार बन रहा है। गोल्ड मेल्ट होके नया गोल्ड बन जाएगा तो मास तो चेंज नहीं होगा, लॉस ऑफ मास तो नहीं होगा। और ये है प्यूरिटी की इक्वेशन कि पहला वाला 18 कैरेट है तो उसकी प्यूरिटी हमने निकाली 18/24 इंटू एक्स। दूसरा वाला 12 कैरेट है तो उसकी हमने प्यूरिटी निकाली 12/24 इंटू वाई। फाइनल वाला 16 कैरेट है तो 16/24 इंटू 120। इससे हमने एक एक्स और वाई में इक्वेशन निकाली, एक इक्वेशन दी हुई थी, दोनों को सॉल्व करके हमारा आ गया आंसर। चमक गया क्या?